Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is human environment. So please open your book, chapter number 9, human environment, and be with me for next 30 minutes. And please be attentive. So let's start human environments and the topics of this chapter. So dear students, the chapter is human environment, and today first we will discuss about urban settlements. In last period we discussed about rural settlements and different types of rural settlements. In this class, in this period, we will discuss about urban settlements. So, urban settlements are characterized by non-agricultural functions such as industries, trade and commerce, administration, transport and utility services like education, hospitals, entertainment, etc. अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस की बात करते हैं. नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस. नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट इन्वॉल्व्ड. So we talk about non-agricultural functions, we talk about industries, trade and commerce, administration, transport and utility services. Utility services जिसमें education, hospitals, entertainments included हैं. In some urban areas, there is no difference between residential and commercial areas. देखो अर्बन एरियाज में कुछ ऐसे अर्बन एरियाज भी हैं जहां पर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरियाज में कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे बहुत सारे शहर ऐसे हैं ना जहां पे रेसिडेंशियल एरियाज एक तरफ हैं, कॉमर्शियल एरियाज एक तरफ है ना. तो क्या होता है ऐसे एरियाज में, क्या होता है ऐसे अर्बन एरियाज में वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरियाज. तो शॉप्स आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड पीपल स्टे एट द अपर फ्लोर्स. आपके अपने शहर में भी आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे लोग रह रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं. तो मेनली what we are talking that urban settlements are characterized by non-agricultural functions, and in some urban areas where there is no difference between residential and commercial areas, where shops are on the ground and people stay at the upper floors. So urban settlements are generally classified on the basis of the economic activities they perform. Urban settlements को किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म हो रहा है उसके बेस पे क्लासिफाई किया जाता है. तो अगर अर्बन सेटलमेंट्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए तो दे आर और दे कैन बी क्लासिफाइड एज. उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? तो द फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. ठीक है ना. ये जो पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स? तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आर कैपिटल सिटीज लाइक न्यू दिल्ली, वाशिंगटन डीसी एंड कैनबरा. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स हैं ना ये कैपिटल सिटीज हैं. लाइक आपके देश का कैपिटल न्यू दिल्ली, उसी तरह से वाशिंगटन डीसी, उसी तरह से कैनबरा है ना, उसी तरह से ढाका. सो द कैपिटल सिटीज आर
also known as, most of the capital cities are also known as administrative towns. क्यों कहते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स? बिकॉज यहां से, जैसे न्यू दिल्ली से पूरे कंट्री के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स, आइडियाज, है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आप कह सकते हैं, वो है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. क्लियर? सो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स is the first classification on the basis of economic activities, and administrative towns are capital cities like New Delhi, Washington DC and Canberra. After that, the second one is defense towns. Dear students, जो दूसरा classification है वो है defense towns. क्या है defense towns? So defense towns are centers of military activities like Mhow and Barrackpore. डिफेंस टाउन्स ना वो सेंटर्स हैं जहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज होती है मेनली. मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की ना, तो जहां पे मेनली मिलिट्री एक्टिविटीज होती है, दोज टाउन्स आर नोन एज डिफेंस टाउन्स. सो डिफेंस टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज लाइक Mhow and Barrackpore. Third one is cultural towns. This is the third classification, that is cultural towns. So cultural towns include religious centers. देखो cultural towns दो तरह के हैं, एक तो religious centers और एक educational centers. Religious centers or religious cities like Ayodhya, Mecca and Jerusalem. है ना, अयोध्या, मक्का एंड जेरूसलम, दे आर द रिलीजियस सिटीज और यू कैन से रिलीजियस सेंटर्स. देन एजुकेशनल सेंटर्स. एजुकेशनल सेंटर्स जहां पर एजुकेशनल एक्टिविटीज होते हैं लाइक ऑक्सफोर्ड, लाइक इलाहाबाद विच इज इन योर ओन स्टेट, एंड शांति निकेतन. These are the centers of educational activities. So cultural towns are of two types: religious towns, educational towns, or you can say religious centers or educational centers. They are, for religious centers, it is like Ayodhya, Mecca and Jerusalem, and for educational center it is Oxford, Allahabad and Shanti Niketan. Then next one is industrial towns, dear students. So industrial towns are the centers of production and manufacturing, or you can say manufacture of different goods. इंडस्ट्रियल टाउन्स कौन से होंगे? जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी, जहां पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के. दोज सेंटर्स और दोज टाउन्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल टाउन्स. फॉर एग्जांपल जमशेदपुर, दुर्गापुर, अहमदाबाद, राउरकेला एंड पिट्सबर्ग. These are the examples of industrial towns. ठीक है ना? इंडस्ट्रियल टाउन्स वो टाउन्स हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है मेनली, वहां पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की. दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल टाउन्स. आफ्टर दैट जंक्शन टाउन्स. देखो जंक्शन टाउन्स आर लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मेजर रोड्स और रेलवेज. ये जो जंक्शन टाउन्स है ना, ये या तो रेलवेज या रोडवेज के क्रॉस रोड पे, है ना, जहां से मेनली क्रॉस करते हैं वो मेन रेलवेज या रोडवेज पे पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मुगल सराय, शिकागो एंड मॉस्को. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ junction towns. I am repeating it one more time. Junction towns are located at the crossroads of major roads or railways. Mughal Sarai, Chicago and Moscow are some examples. After that, rural and urban. In this topic, we will discuss how rural and urban areas are dependent on each other. So rural and urban areas both are dependent on each other. ये जो रूरल एरिया है, ये जो अर्बन एरिया है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं.
अगर रूरल एरियाज की बात करें, विलेजेस की बात करें, सो द विलेजेस सप्लाई फूड ग्रेन्स, fruits, vegetables, agricultural raw materials and casual laborers to the towns. Villages towns को क्या सप्लाई करते हैं? तो फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एंड कैजुअल लेबरर्स। ये विलेजेस अर्बन एरियाज को, टाउन्स को सप्लाई करते हैं। उसके बदले टाउन्स क्या सप्लाई करता है विलेजेस को? सो द टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स, सोशल एंड यूटिलिटी सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द विलेजर्स। टाउन्स जो है वो विलेजेस को इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई करता है, सोशल एंड यूटिलिटी सर्विसेज सप्लाई करता है और विलेजर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो आपने देखा कि रूरल और अर्बन एरियाज वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आफ्टर दैट समटाइम्स विलेजेस एडजस्ट देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स टू मीट द नीड्स ऑफ सिटी ड्वेलर्स। कई बार ऐसा होता है कि जो विलेजेस है ना वो शहरों के डिमांड के हिसाब से अपना क्रॉपिंग पैटर्न एडजस्ट करते हैं। किस तरह का क्रॉप करना है, किस तरह से क्रॉप्स ग्रो कराना है, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वहां के आसपास के शहरों की डिमांड कैसी है। एंड दिस गिव्स स्ट्रेंथ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। और इसी की वजह से ये जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, इसी की वजह से रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलता है, उनके एग्जिस्टेंस को स्ट्रेंथ मिलता है। So, sometimes villages adjust their cropping patterns to meet the needs of city dwellers, and this gives strength to the existence of rural and urban settlements. Now, the next segment is, dear student, transport. This is the next segment, and we will discuss about transport in this section, different types of transport. So the network of different means of transport is developed to facilitate the movement of people and goods. ये जो different types of transport है, different means of transport है, उसका नेटवर्क क्यों डेवलप हुआ? जिससे कि वो people को और goods को मूव करा सके एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है ना? उसके बाद इट ऑल्सो लिंक्स द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है जो प्रोडक्शन सेंटर को कंजम्पशन सेंटर से जोड़ता है। सपोज करो आपने कुछ प्रोड्यूस किया तो आप उसको सेल कैसे करोगे? आप उसको कंजम्पशन सेंटर तक कैसे ले जाओगे? ओनली बाय ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट लिंक्स द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। In the modern age, even ideas and skills move from one place to another with the help of transport system. केवल गुड्स और पीपल ही मूव नहीं करते ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यहां तक कि आइडियाज और स्किल्स भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि गुड्स, पीपल, आइडियाज एंड स्किल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर with the help of transport system. The development of different means of transport is influenced by relief features and economic activities. ये जो different types of transport है या different means of transport है, उसका जो development हुआ वो वहां किसी भी एरिया के रिलीफ फीचर्स और वहां के इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, वो बहुत ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करता है। इवन टुडे ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट हैव एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आज के डेट में भी जब दुनिया ने कितना डेवलपमेंट कर लिया, दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, उसके बाद भी दुनिया के सारे पार्ट्स जो हैं वहां पर नेटवर्क जो है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत बेहतर नहीं है। दुनिया के ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं
जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट अरेंज, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या अगर है तो बहुत कम अवेलेबल है, लाइक दैट। तो द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है, इसने ट्रांसपोर्ट को बहुत डेवलप किया है। लैंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे। अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो रोड्स और रेलवेज पर, इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स एंड रेलवेज। अब अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट यूजेस नेविगेबल रिवर्स, कैनाल्स एंड अदर वाटर बॉडीज। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या यूज करता है? वो नेविगेबल रिवर्स, कैनाल्स एंड जो दूसरे वाटर बॉडीज हैं उसको यूज करता है। उसके बाद अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स बिग एयरपोर्ट्स इक्विप्ड विद एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसको बिग एयरपोर्ट्स की जरूरत होती है और जो कि एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से इक्विप्ड हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का, दैट हैवी लोड्स कैन बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि अब हैवी लोड को भी बहुत लंबी दूरी तक कम समय में पहुंचाया जा सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रोडवेज से। आज हम लोग केवल रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे और फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो वी विल टॉक एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लोग रोडवेज की बात करते हैं। तो देखो, रोड्स आर एन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करना हो तो जो सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है रोड्स। रोड्स भी देखो दो तरह के होते हैं, मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। तो ये जो मॉडर्न हाईवेज हैं, है ना, आपके शहर में भी, शहर के जो एक साइड में अगर हाईवे है तो जो मॉडर्न हाईवेज हैं दे आर वेल सरफेस्ड मेटल्ड रोड्स यूज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। ये जो मॉडर्न हाईवेज है ना वहां पे मेटल्ड रोड होते हैं और वो जो मेटल रोड है वो क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हाई स्पीड ट्रैफिक हो यूज हो सके। अदरवाइज अगर रोड मेटल्ड नहीं होगा यानी कच्चा रोड होगा तो हाई स्पीड आप उसमें मेंटेन नहीं कर सकते। एंड दे आर वाइड एनफ टू अलाउ फ्री मूवमेंट टू ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन। जो हाईवेज है ना वो काफी वाइड होते हैं और इसी तरह से दोनों साइड से जो है मूवमेंट हो सकता है, दोनों डायरेक्शन से जो है ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट हो सकता है, व्हीकल्स का मूवमेंट हो सकता है। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। यहां तक कि रोड्स जो है माउंटेन्स में बनाया गया, डेजर्ट्स में बनाया गया और फॉरेस्ट्स में बनाया गया। ठीक है, आफ्टर दैट ईस्टर्न यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप दे हैव डेंसेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी रोड्स इन द वर्ल्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे डेंसेस्ट रोड कहाँ है तो दे आर इन ईस्टर्न यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। यूरोपियन रशिया हैज ए डेंसर रोड नेटवर्क देन एशियाटिक रशिया। अगर यूरोपियन रशिया की बात करें, वो रशिया का वो साइड जो यूरोप की तरफ है वहां पे रोड नेटवर्क ज्यादा डेंस है अगर उसको कंपेयर करें एशियाटिक रशिया से। अफ्रीका की बात करें तो इन अफ्रीका द ट्रांस ईस्ट अफ्रीकन हाईवे बिटवीन कैरो एंड केप टाउन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये ट्रांस ईस्ट अफ्रीकन हाईवे है ना जो कि कैरो एंड केप टाउन के बीच में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम अभी चल रहा है। एंड द मेजर रोड लिंक इन ऑस्ट्रेलिया
is the Transcontinental Stewart Highway. अगर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे मेजर लिंक रोड है दैट इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे. क्लियर? देन अगर अब बात करें इंडिया की, सो द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इन इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया में जो रोड नेटवर्क है उसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, या ऐसे देश जहां पर वो डेंसिटी सबसे कम है उसमें से इंडिया एक है. द नेशनल हाईवे सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू लिंक द स्टेट कैपिटल्स, पोर्ट टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज. जो नेशनल हाईवे है ना, जो नेशनल हाईवे बनाया गया है इंडिया में, वो किसको किसको आपस में लिंक करते हैं? तो वो स्टेट कैपिटल्स को लिंक करते हैं, पोर्ट टाउन्स को लिंक करते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स को लिंक करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको लिंक करते हैं. इंडिया में जो मनाली लेह हाईवे है विच इज इन द हिमालयाज इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. मनाली लेह हाईवे जो है हिमालय में बना हुआ है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा रोडवेज है. और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे देश में रोड के लिए, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवेज. अब इंडिया में एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो और फैसिलिटेट करने वाला रोड है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रोडवेज. एंड इन नेक्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट्स, we will talk about and we will discuss about different types of transport, different means of transport. So it is my humble request to each and everyone, please read all the topics carefully, and when we will meet in next class, we will discuss other topics of the chapter. Till then, thank you and have a nice day.